Namaskar. Today, Mr. R. Pirimal is present for discussion with us. In our voice, Pirimalji is the Zonal Secretary of South Central Railway of All India SC/ST Railway Employees Association. Namaskar. Mr. R. Pirimalji, today we will discuss many Thank you. important issues with you. The first thing we will talk about in Corona. Sir, please. Okay. What is that? Currently, due to COVID-19, there is a terrible situation Yes, in the country. In such a situation, what do you suggest for the safety of members of your organization? Sir. Okay, sir. As a organization man, I suggest everyone that we have to maintain the WHO guidelines के बारे में. We have to maintain all the procedures and we should avoid personal contact. In every meeting, we have to go for the virtual meetings. Sir. The organization should avoid meeting the people in mass. That is only I request. I can tell to our people to maintain in this situation COVID-19. Sir. This is my proposal. Sir. Because in every angle, people are facing a lot of problem because of this personal contact. We are only a working class. There is no way of avoiding this mask. But even then, we have to maintain the WHO guidelines like physical distance, sanitizing, like this. So many points, procedure they are given that we have to follow very strictly. Sir. Yes. Sir, one issue is very important, which is the issue of privatization of railways. What do you think about this? What is your organization doing to stop privatization of railway? Sir. Sir, see, this privatization is more than a dangerous thing to the people of the reserved community. It is more than Corona, more than COVID. Sir. Thing is, Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar is a socialist person. He was supporting the government everywhere. The government sector, public sector should be in the country. But today, the things are moving in a different direction. It is going to the private sector. Baba Sahib Ambedkar ke baare mein, the people are making 125 feet of the statues in various places. Sir. But whatever the Baba Sahib Ambedkar was telling to this nation, they are not following. See, actually, in this country, the government, public sector only in the industry and the land distributions. But today, the land distribution, land and the industry should be with the government. The health and the education should be with the government only. That is only the philosophy Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar has given to this country. But the people are reluctant to follow and they are not following this procedure. And one more thing, the privatization, when I think, I can tell one thing. In the democracy, if there is no opposition, proper opposition, it is more dangerous. That what is happening today. People are acting according to their will and wish by leaving all the constitutional rights. Baba Sahib Ambedkar, in every way of his constitutional method, he was supporting the government only, not the private. The public money is going to the private people, not to the government. So our railway, we are opposing this the present privatization. The 151 stations, all the workshop, they are going to unite and going to sell out. I can say such a dangerous situation is there in the Indian Railway. It is not good for the reservation people, because by leaving the people to the private, we will lose the reservation. For the past 70 years, the present population of the SC, ST and BC, they are enjoying the reservation. Even then, the reservation is not filled up more than
11% in the country. But still, there are more number of backlog vacancies. The government is not able to fill up the vacancies in the 15 and 7.5% to the SC/STs. For this solution, the railway is opposing. Sir. Railway is not railway organization, SC/ST organization is not happy for the action what the government is taking today. Let them allow this reservation for some more years for the next generation also. See, if you take the population of the country, it tops more than 25% in the country. Even then, the reservation is very little if you compare the other works what the SC/ST people are doing for the country. But they are targeting this railway specially because it is the biggest industry in the Indian soil. That's why people are trying to catch this railway, which is not correct. We are totally opposing. The railway is making a dharna against this rally and dharna against this privatization policy. The government should stop doing such a practice. They should allow to bring more number of SC/ST people for the railways. But always we are asking from the government. But the government is, we can say, it is totally failed. I can say the reservation is not filled up so far to the maximum percentage. The maximum percentage in the sense 15 and 7.5%, they are not able to fill up this situation. When that is the situation, why the people should go for this type of activities, where the SC/ST people will have the chance for working. There is no other scope. The SC/ST people are not in the top position in the judiciary. They are not in the vice chancellor in the college. There are so many government organizations. Our adequate representation is not there. We are not able to find very, very minimum people in the country. NSFDC, the Finance Corporation, the Industrial Development, no people are available from the SC/ST and BC community. The money, the lot of money has been given to other communities and the businessman. Already more number of money are going to these people. In this situation, the privatization is the against of the SC/STs because they can demolish the railway, demolish the reservation policy. It is one backdoor method for demolishing the reservation. It is not good for the government. As I already told, the present situation of the country, Sir. In democracy, if you don't have the proper opposition, it is more dangerous today what the country is facing. Sir, Perimalji, complaints are received that promotion of SC/ST employees are stopped. They are punished needlessly. There is also a conspiracy by the railway administration to implicate the officials of your organization in false cases. In such cases, how will you support the members and office bearers of your organization, sir? Sir, regarding this issue, I can say the government, the administration should take a lot of initiative to eradicate this type of problem. Always the SC/ST members are the officer. They support the railway administration in large, but they should come forward to eradicate wherever the problem comes for these association people and members. Sir, will you raise these kinds of issues in the moment of 24th September? Sir, this 24th September rally, that is a protest rally. We want to emphasize one thing. The government should leave such a drastic action of privatization and the filling up of the backlog vacancies and stop penalizing the SC/ST employees and officers, fill up these unfilled posts in a targeted manner. I can say even today,
the SC/ST people, the land is not with the SC/ST people. The land and the industries are already gone to the other people. SC/ST people are nil in that area. So government should give a lot of advantage as well as the importance to the SC/ST people Sir. throughout the country. The railway administration, which is the backbone of the Indian economy, the SC/ST people are working very hard, and they do a lot of hard work for the development of this Indian railway. We can say and protest against this privatization. They should leave such attitude, action, which will not give any benefit to the SC/ST people. What we are expecting, that benefit is not being taken care by the government. Government may come and go, but the people who are coming and ruling this country as a politician, they are not giving more importance. The government should emphasize and take a lot of steps against the SC/ST people in the point of promotion and their employment. That on 24th of September, we are going to force the government to leave such attitude and be with the SC/ST people, SC/ST railway employees in the country, in the Indian railways. That is only what we are going to say on 24th September, sir. Sir, thank you very much for talking with our voice. नमस्कार. Thank you, Sir. Namaskar. नमस्कार. आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं सरदार सिंह जी, जो कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के DLW वाराणसी के जोनल सेक्रेटरी हैं। तो हम इनके साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से रेलवे के निजीकरण का मुद्दा है। नमस्कार सरदार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आवर वॉइस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग कई अहम मुद्दों पे चर्चा करेंगे, इसमें कुछ खास मुद्दे हैं। हाँ बोलिए। लेकिन इसके पहले हम लोग कोविड-19 पर जरा चर्चा कर लेंगे। तो उसमें इस महामारी से बचने के लिए आप क्या सुझाव देंगे सर, अपने सदस्यों को, अपने संगठन के सदस्यों को या आम जनता को? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि कोविड-19 महामारी जो है जी, वो पूरे विश्व में फैली हुई है जी। भारत में भी इसका प्रकोप बहुत ज्यादा है जी। भारतवर्ष के जो हमारे लोग हैं इससे बहुत ही डरे हुए हैं। डर ये है कि ये वायरस ऐसा है कि ये कम्युनिटी वाइज अगर वायरस फैलता है ये पूरे भारतवर्ष के लोगों को मतलब निगल जाएगा। लेकिन इसके सुझाव भी WHO ने दिए हैं और मैं अपने संगठन के लोगों को बताना चाहूंगा, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से धोएं, उसके बाद मुंह को धोएं और उसके बाद जब आप शौचालय जाते हैं तो पूरा सैनिटाइजिंग करके उसके बाद ही आप बाथरूम या इस्तेमाल करें। नहाने के बाद में जब आप नाश्ता में चाय वगैरह लेते हैं, काढ़ा लेते हैं, तो काढ़े का इस्तेमाल करिए, चाय का इस्तेमाल करिए। सबसे पहले चाय और काढ़ा पीने से पहले एक गर्म पानी का गिलास इस्तेमाल करना चाहिए, पीना चाहिए, ताकि जो गले में खराश होती है या गले में जो वायरस का कुछ अंश इधर उधर से आ भी जाता है वो खत्म हो जाएगा। नाक में जो वायरस होता है चला जाता है, अक्सर देखा जाता है। तो नाक को गुनगुने पानी से जो लेकर के वो सिंक करके उसको फिर वापस थ्रो करना चाहिए उसको, ताकि वो जो नाक के अंदर वायरस है वो जल जाएगा। उसके बाद ऑफिस जाने से पहले अपनी गाड़ी को सैनिटाइज कर लेंगे। कार से जाते हैं तो कार को अंदर से सैनिटाइज कर लेंगे। मास्क को
सबसे पहले जाने से पहले इस्तेमाल करेंगे। घर से बाहर निकलने के बाद अगर आप ज्यादा आवश्यक कार्य ना हो, अनावश्यक आप कहीं बाजार में, कहीं दुकान में या कहीं पे भी कार्य अन्य स्थानों पे या रोड पे ना घूमे, ऐसा मैं लोगों को बताता भी हूँ और कह भी रहा हूँ अभी आपके चैनल के माध्यम से। ऑफिस में जाते ही अपने कुर्सी टेबल को सैनिटाइज करवा लेंगे और पेन जो इस्तेमाल करते हैं उसको सैनिटाइज कर लेंगे, कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको सैनिटाइज कर लेंगे। जहाँ पे पानी पीना और नल या जो अपना पानी साथ में लेके जाएंगे वो गर्म पानी की बोतल एक साथ में लेके जाएंगे ताकि वो थोड़ा थोड़ा करके उनको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में अगर मार्केट में भी जाना हो तो 2 गज की दूरी बना करके वहां रहेंगे। ऑफिस में भी लोगों से कम संपर्क करेंगे। ई ऑफिस के थ्रू अपना जो कार्य होता है प्रतिदिन का ऑफिस का कार्य ई ऑफिस के थ्रू करेंगे तो बेहतर होगा, और नहीं तो वो जो पेपर आता है उसको आप सैनिटाइज कर लेंगे, उसके बाद में आगे फॉरवर्ड करेंगे। और मैं ऐसा ही करता हूँ, मेरे एसोसिएशन के जो भी पत्र, जो भी लेटर वगैरह जारी करता हूँ प्रशासन को, वो सैनिटाइज करने के बाद में, और वहाँ पे जहाँ पे सेंट्रल डिस्पैच रिसीव बना हुआ है वहाँ पे सैनिटाइज होता है, या फिर ई ऑफिस के थ्रू मैं अधिकारियों को लेटर जारी करता हूँ। ज्यादातर यही सुझाव है कि दिन में कम से कम 2 बार ड्यूटी के आने के बाद में वो नहा ले, गर्म पानी से, हल्के गर्म पानी से नहा ले, और उसके बाद गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म गुनगुने पानी में नींबू डाल करके और थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक डाल करके, थोड़ा चीनी डाल करके घोल बना करके वो ड्यूटी से आने के बाद इस्तेमाल करेंगे। और फिर नहा लेंगे, नहाने के बाद में भोजन करेंगे, फिर अपना दूसरे कपड़े जो पहन के गए हैं ड्यूटी में उनको इस्तेमाल कभी ना करें। जी सरदार जी, बाद ही इस्तेमाल करें। जी सरदार जी, एक मुद्दा काफी अहम है जो कि रेलवे के निजीकरण का मुद्दा है। इस बारे में रेलवे के निजीकरण रोकने के लिए आपका संगठन क्या कर रहा है सर? रेलवे में जो निजीकरण हो रहा है, जो प्रस्ताव सरकार ने, भारत सरकार ने लेके आई है रेलवे में, अभी उसके लिए हम 24 सितंबर 2020 को एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। और विरोध प्रदर्शन आधे घंटे के लिए होगा, भोजनावकाश में, लंच ब्रेक में होगा। उस लंच ब्रेक में हम जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे और प्रशासन, जो डीएलयू का प्रशासन है, सीपीओ महोदय, पीसीपीओ महोदय, जीएम महोदय, इन सबको मतलब कि हम ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। और उसमें हमारी ये मांगे रहेंगी कि भाई रेल में जो 16 लाख कर्मचारी थे घटा करके आज 13 लाख हो गया है, और जो 3 लाख के आसपास वैकेंसी थी या 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी थी जिसमें SC/ST भी शामिल है, उनको 50% कम कर दिया गया है। और 50% कम करने का मतलब है कि हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, और प्राइवेट होने पे हमारे लोगों का जो आरक्षण है, सामाजिक समानता है, वो भी खत्म हो जाएगी, और आर्थिक समानता है वो भी खत्म हो जाएगी। हमारे लोग फिर से गरीब की श्रेणी में आएंगे और वो उनके पास कोई संसाधन नहीं होगा काम करने का, ना प्राइवेट में हम लोगों को लिया जाएगा। और प्राइवेट में न लेकर के, क्यों आरक्षण तो होता नहीं है, वहां पे ऐसे लोगों को लिया जाएगा, कम तनख्वाह को दिया जाएगा। जैसे हाल में ही आपने तेजस रेल चलाई थी, उसमें जिन कर्मचारियों को रखा था उनको कम वेतन में रखा गया था, प्राइवेट कंपनी ने, उन्होंने भी छोड़ दिया, वो तेजस अभी भी बंद हो गई है। जी, ये आपका ये आंदोलन की तारीख को है? 24 सितंबर 2020। अच्छा जी जी बिल्कुल। ये शिकायतें मिलती हैं कि SC/ST कर्मचारियों की जो पदोन्नति है, प्रमोशन, उनको रेलवे प्रशासन जो है कि रोक देता है। आपके संगठन के पदाधिकारियों को रेल प्रशासन द्वारा झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची जाती है। ऐसे मामले में आप अपने संगठन की तरफ से अपने संगठन के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का किस तरह से सहयोग करेंगे सर? जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे माननीय श्री BL बैरवा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और श्रीमान अशोक कुमार जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रखी है। और वो याचिका पे अभी सुनवाई मतलब बार बार टलती रहती है।
अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन जो है उसको ध्यान में रखते हुए प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए आनाकानी करती है। लेकिन हमारा जो संगठन है वो प्रशासन को लिखित रूप में ये कहा जाता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, इसलिए अभी जो प्रमोशन हो रहे हैं वो रिजर्वेशन उसमें अभी फिलहाल रुका हुआ, मतलब बंद नहीं हुआ है, प्रमोशन हो रहे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का पूर्णतया से आदेश नहीं आएगा तब तक पूरा भारतीय रेल में प्रमोशन में रिजर्वेशन जारी रहेगा। सरदार जी, इसी में एक दूसरा जो सवाल जुड़ा हुआ है कि जैसे आपके संगठन के जो प्रतिनिधि हैं, जो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें झूठे मामलों में प्रशासन द्वारा फंसाने की जो है कि कोशिश की जाती है। आपके जो ऑफिस बेयर्स जो है उनको फंसाने की कोशिश की जाती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे सहयोग करेंगे उन लोगों का? जो प्रशासन है, कभी कभी प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो इस संस्था से थोड़ा नाराज होते हैं। नाराज इस कारण होते हैं कि ये एक कम्युनिटी वाइज है, जो हमारे समाज के लोगों को दूसरे जो उच्च श्रेणी के जो समाज के लोग हैं उनमें जो अधिकारी लोग हैं वो जरूर उनकी मानसिकता कभी कभी ऐसी होती है कि हम लोगों को मतलब कि एक दूसरे नजरिए से देखते हैं, संगठन को दूसरे नजरिए से देखते हैं, और कुछ जो बातें होती हैं जो मानते नहीं हैं, जो सुविधाएं जो दी जाती हैं रेलवे बोर्ड के थ्रू उनको प्रभावी मतलब प्रभाव तौर पे या उनको लागू नहीं करते हैं, या हमारे लोगों के अंदर जो कभी कभी मतलब कि बैर भावना से दुर्भावना से उनको चार्जशीट वगैरह दी जाती है, उनको किसी प्रकार से फंसाया जाता है, तो ये संगठन उनके लिए तत्पर काम करता है और उनको इस बात के लिए एहसास करवाया जाता है कि ये जो आपके आरोप हैं निराधार हैं, सत्य नहीं है। कृपया आप इस रूल के अंतर्गत आप इस पदाधिकारी को, इस कर्मचारी को आप बेवजह परेशान करते हैं। हमारा अगर एट्रोसिटी का केस होता है तो एट्रोसिटी में हम जो है पुलिस केस करते हैं। अगर एट्रोसिटी का नहीं होता है तो अगर हमको डीआर में फंसाया जाता है तो डीआर के तहत हम जवाब देते हैं और प्रूफ तैयार करके उनको दिया जाता है प्रशासन अधिकारी को। और फिर कुछ हम धरना प्रदर्शन करते हैं और कुछ हम विरोध प्रदर्शन करते हैं और कुछ हमारी जो हड़ताल होती है उसके आधार पे हम हड़ताल भी करते हैं। उस अधिकारी के विरोध में हम उच्च अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को या जिला अधिकारियों को या रेलवे बोर्ड को भी हम लिखते हैं, सीसी को भी लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो संगठन है वो कर्मचारियों के लिए और पदाधिकारियों के लिखने पढ़ने के लिए उच्च अधिकारियों को और रेलवे बोर्ड को हमेशा लिखता रहता है, और उसके आधार पे हमारे कर्मचारियों या पदाधिकारियों को और उस दंड से वंचित कर दिया जाता है और उनको मतलब निर्दोष साबित कर दिया जाता है। कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जो प्रशासन जानबूझ के इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि दंडित करना है, लेकिन फिर उसके बाद में हम कैट में जाते हैं, कैट के थ्रू वो डिसीजन लेके आते हैं, प्रशासन के खिलाफ कैट का डिसीजन आता है तो उन्हें हमारा जो है वो कर्मचारी और पदाधिकारी बहाल हो जाता है। जो एक दो उदाहरण हमारे यहाँ भी हैं जो हमने इस तरह से काम किया, कैट के थ्रू नहीं हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट से हुआ, सुप्रीम कोर्ट से हुआ। तो इस तरह से हमारा जो न्यायालय है निष्पक्ष न्याय करता है, इसलिए हमें हमारे पदाधिकारियों को बचाने के लिए न्यायालय हमारे पास है, उच्च न्यायालय हमारे पास है, कैट हमारे पास है, इनके थ्रू हम जीत के आते हैं और हमारे कर्मचारी बहाल हो जाते हैं। जी सरदार जी, इन मुद्दों को क्या आप 24 सितंबर के आंदोलन में उठाएंगे? जी, अभी ये जो अभी इन मुद्दों पर जो चर्चा हो रही थी, जैसे कि आपके ऑफिस बेरर्स को जो फंसाने की साजिश चलती है, ऐसे मुद्दों को, ऐसे मामलों को क्या इस 24 सितंबर के आंदोलन में शामिल करेंगे आप लोग? ना केवल निजीकरण के खिलाफ आप लोग का आंदोलन है? नहीं, हम जो आंदोलन करेंगे या विरोध करेंगे ये WHO के दिशा निर्देशों और जिला अधिकारी के दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही करेंगे। हम डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, दूसरा मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजिंग करेंगे
और किसी प्रकार का मतलब इस तरह का विरोध नहीं करेंगे जो ये प्रशासन, मतलब हम ये नहीं कहना चाहते हैं, हम किसी को बुरा भला नहीं बोलेंगे, शब्दों का सही प्रयोग करेंगे। हमारा जो पुनः पैक्ट है या जो हमारा आरक्षण है उसके लिए हम बात करेंगे। किसी अधिकारी गाली गलौज, किसी अधिकारी को ऊंचा नीचा बोलने की हमारी कोई मंशा नहीं रहती है और नहीं करते हैं। और हमारे जो अधिकारी हैं रेलवे के, वो भी हमारे प्रति ऐसी कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं ताकि हमको फंसाने की कोशिश करेंगे। पुलिस प्रशासन हमारे साथ रहेगा। हमने पुलिस प्रशासन को भी लिखा है कि हमें मतलब सुरक्षा दी जाए ताकि किसी प्रकार का दूसरा आदमी, दूसरे समाज के लोग हमारे अंदर घुस करके किसी प्रकार का उपद्रव ना करे ताकि हमको वो फंसा सके। इस तरह से हम जो है अपना पूरा तैयारी में है, किसी प्रकार का हम उस तरह का विरोध नहीं करेंगे, उस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जो हमारा असंवैधानिक होगी, अनपार्लियामेंट्री होगी, क्योंकि हमें लिखित रूप में देना है। उस लिखित रूप में जो एजेंडा जाएगा, ज्ञापन जाएगा, उसमें किसी प्रकार का सरकार के विरोध में नहीं जाएगा, सिर्फ निजीकरण और निगमीकरण के विरोध में जाएगा। जो हमारा अधिकार है, जो हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है, जो हमें सीईसी और रेलवे बोर्ड ने अधिकार प्रदत्त किए हुए हैं कि हम अपनी बातों को लिखित रूप में प्रशासन को दे सकते हैं। सरदार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आवर वॉइस को अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, थैंक यू।